Now we're done with the body fluid. Now we'll go for the circulation. Okay, so for that we need a circulatory system. Okay, so we already discussed there are two type of circulatory system. One is called open and another is called closed. One is called open circulatory system, another is called a closed circulatory system. Okay, so circulatory system function transport. So what is meant by open circulatory system? If this is the body of organism, blood go directly here and there. So these are the organ which are directly dipped into the body. In case of closed circulatory system, these organs are not dip into the, like this is the whole blood, whole organ dip. Here the blood is circulated by artery, vein, okay, and there is a heart here. So this is closed circulatory system. This is the open circulatory system. Open circulatory system usually found in arthropod. आप अगर आपका एनिमल किंगडम दोगे तो आर्थ्रोपोड और मॉलस्क में आपको कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. लेकिन एक आर्थ्रोपोड है जिसमें ओपन नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड लीच. दैट इज कॉल्ड लीच. एक्सेप्ट लीच. लीच पता है आपको, जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, पिंपल्स होने के बाद बहुत बार उसका ट्रीटमेंट करके यूज करते हैं बिकॉज ही इज सकिंग द that is called bad blood. Okay, so this is all about the treatment. Okay, so arthropod में सारे आर्थ्रोपोड में ओपन रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट लीच. वैसे ही सारे मॉलस्क में कौन सा है? दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट ऑक्टोपस. एक्सेप्ट ऑक्टोपस. ऑक्टोपस में कौन सा रहेगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब देखते हैं हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में रहेगा. ह्यूमन तो सबको पता है, राइट? सो इन ऑल vertebrates, in all vertebrates and annelids, there is which type of circulatory system? Closed circulatory system. Okay, so because of this closed blood vessel, because of this closed blood vessel, here the blood pressure is higher. Here there is no blood pressure because blood is like not circulated, it is like here. Second, in open circulatory system, there is no RBCs. There is no RBCs, and here there are RBC. Okay, so this is all about your which are types of circulatory system. Now we are गोइंग फॉर क्लोज वन, जो हमको किसकी देखनी है? ह्यूमन की देखनी है, हमारी देखनी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या रहेगा? सबसे मेन तो हार्ट रहेगा, ब्लड वेसल रहेंगे और ब्लड. ब्लड तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट? सो फ्लूइड, ब्लड में यानी फ्लूइड बोलेंगे हम इसको, लाइक ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, राइट? सो दीज आर ऑल अबाउट योर विच वन? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो पहले हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल है क्लोज, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं है. सो फर्स्ट वी विल सी द ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप. ओके, artery, vein and capillaries. Artery, vein and these are capillaries. What is the difference between artery, vein and capillary? So if you see here, the arteries are thick wall, vein are thin wall, and
कैपिलरीज तो कुछ वॉल है ही नहीं, इसमें क्या है, सिंगल लेयर है किसका, ये जो सेल है एंडोथेलियल सेल. सेकेंड डिफरेंस, आर्टरीज कैरी oxygenated blood, vein carry deoxygenated blood, and capillaries carries, if it is arterial carry then it is the oxygenated blood, if it is a venular then it is a deoxygenated blood. Okay, so all the artery carry oxygenated blood except which one, pulmonary artery, except pulmonary artery. Pulmonary carry which blood, that is called deoxygenated blood, which is present in the heart, जो हम लोग बाद में देखते हैं. All the vein carry deoxygenated blood, okay, except which one, that is called pulmonary vein. Except कौन सी, pulmonary vein, जो लंग में से आपके हार्ट में जाती ना oxygenated blood लेके, which carry oxygenated blood. Okay, now ल्यूमेन, यहाँ का देखो ल्यूमेन छोटा है, यहाँ का वाइड है, ओके, और यहाँ तो बहुत छोटा है, राइट. आर्टरीज आर जो थिक मस्कुलर है, इसको मोर इलास्टिक, इसीलिए तो ब्लड प्रेशर हम लोग आर्टरीज में देखते हैं. वेन्स आर लेस इलास्टिक, ओके, एंड दीज आर द थिनेस्ट वन. सो दीज आर फॉर एक्सचेंज, दीज आर फॉर एक्सचेंज. इनका मेन फंक्शन है एक्सचेंज, इसका मेन फंक्शन है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीनेटेड ब्लड. ब्लड प्रेशर किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ आर्टरीज. ओके, कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड करती है, पल्मोनरी आर्टरी. कौन सी वेन है जो ऑक्सीनेटेड करती है, पल्मोनरी. बहुत इजी है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट, सो दीज आर द लेयर. तो ये कितने लेयर है, इफ यू कट दिस वेन और इफ यू कट द आर्टरी, ओके, सो दे आर हैविंग वन आउटर लेयर, एक सबसे बाहर का लेयर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्ना. इसको बोलते ट्यूनिक लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, दोनों जगह एक ही है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना. बीच वाला जो मसल से बना है ये वाला, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया. इसका भी बीच वाला ट्यूनिका मीडिया. और सबसे जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं, ये अंदर वाला ट्यूनिका इंटिमा. सो बाहर का एक्सटर्ना, अंदर का इंटिमा, और बीच का कौन सा है, दैट इज कॉल्ड द मीडिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द लेयर्स ऑफ योर आर्टरी एंड वेन. इसका तो लेयर की जरूरत ही नहीं है. और इलास्टिक मेम्ब्रेन रहती है, दोनों इसमें रहती है, आर्टरी में भी रहती है, वेन में भी रहती है, लेकिन आर्टरी में ज़्यादा इलास्टिक रहती है. सो यू कैन सी दैट देयर इज अ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ द आर्टरी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो पहले हम लोग देखते हैं बाकी नॉर्मल जो है इनका हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, अपना नहीं, पहले हम लोग देखते हैं लाइक व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. सर्कुलेशन के दो टाइप है, वन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन and another is called double circulation. One is called single circulation and another is called double circulation. Okay, so हार्ट में से ऑर्गन के पास, ऑर्गन में से हार्ट में, हार्ट में से लंग के पास, लंग में से वापस हार्ट में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन, ऑर्गन में से बाहर, बस खत्म, बाहर से अंदर, तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन. So you don't have to go in a detail of what is single circulation and what is double circulation. Usually they will ask you the example. In case of fishes, there is a single circulation, and in case of rest of the all mammals तो है, reptile, aves, amphibian, सब जगह कैसा है, डबल सर्कुलेशन है. ओके, सो सिंगल सर्कुलेशन का सिंगल एग्जांपल है फिश. सिंगल सर्कुलेशन का सिंगल एग्जांपल है फिश. ओके, ये ऑल आर हार्ट में है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिश में क्या होता है. इन केस ऑफ फिशेस, हार्ट इज देयर बट इट इज
टू चेम्बर, दो चेम्बर का हार्ट है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, राइट. सो दिस इज द फिशेस. और सर्कुलेशन कैसा है, सिंगल सर्कुलेशन. उसके बाद फिश के बाद एम्फीबियन. इन केस ऑफ एम्फीबियन द हार्ट इज थ्री चेम्बर, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. ओके, यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है, लेकिन डबल सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, क्योंकि ब्लड मिक्स हो रहा है. ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पर मिक्स हो रहा है. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. एम्फीबियन के बाद आएगा आपका रेप्टाइल्स. इन रेप्टाइल्स द हार्ट इज बेसिकली द three chamber. Here also it is the three chamber, same ऐसा ही, incomplete double circulation except crocodile. crocodile में फोर चेम्बर वाला है, याद रखना है आपको. रेप्टाइल में कौन से, क्रोकोडाइल या एलिगेटर भी, इसमें फोर चेम्बर हार्ट है. ओके, और लास्ट में जो है एव्स, दैट इज बर्ड्स, और हम लोग मैमल्स, हार्ट कितना है, फोर चेम्बर है. इन केस ऑफ एव्स एंड मैमल, ओके, इफ यू सी टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेट. ओके, so here there is a double circulation but it is complete. It is complete. यहाँ कैसा है, देखो मिक्स हो रहा है, इधर का इधर जा सकता है, इधर का इधर जा सकता है. ओके, यहाँ पर भी ऐसा ही है. so as you go from fish to mammals, the chamber of heart also increases, right? Who discovered the circulation? William Harvey discovered the blood circulation. Okay, so if you see the Nereis, that is one of the example, that is in annelid, that is in Nereis, there is basically the no heart. In Nereis, Nereis no heart. Nereis में no heart. Okay, and there is one chordate that in which there is a no heart, that is called Amphioxus. That is called Amphioxus. ये कॉर्डेट होने के बावजूद भी इसमें हार्ट क्या है, नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. that is called heart. Now we will see heart. Human heart. We are talking about the human heart. Human heart, everybody know it is like it is where exactly. This is the neck, this is the clavicle bone, these are the diaphragm. Okay, this is one lung and this is the another lung. Here in the left side there is the human heart. This is the position of the human heart. Okay, so this human heart is approximately 12 centimeter long. Okay, लंबा है, and 9 centimeter wide. So 12 centimeter long and 9 centimeter wide. That is the dimension of your which one, that is called the human heart. And normally बोलते कि adult की जो fist है, this is the size of the fist, 12 centimeter long and 9 centimeter wide का आपका human heart रहता है, right? And the weight is 100%. It is more in the male, like it is 280 to 314, that is called male, and in female it is less than like 240 to 280. So this is the weight of the human heart. Okay, now this heart is specifically covered with a layer, and this layer is called, I will draw the layer around the heart. This is the layer. This layer is called pericardium. हार्ट के ऊपर, तो क्या बोलोगे आप इस लेयर को, पेरिकार्डियम. दिस पेरिकार्डियम इट इज टू लेयर्ड. जो अंदर का है, जो विसरा के डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम. और जो बाहर से थोड़ा सा थिक कर देते हैं हम इसको, बाहर से यानी पेरिफेरी में, इसको बोलते हैं पैराइटल
pericardium. So this is a visceral pericardium and this one is parietal pericardium. ये दोनों लेयर के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, इस गैप में I will draw this gap with the help of some blue color, right? And this blue color is basically the gap and which is nothing but the यहाँ पर क्या रहेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा, राइट? सो जब आपका हार्ट बीट करेगा तो इसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन मिलेगा, राइट? सो दैट इट विल बी बीट ओके प्रॉपरली. सो दिस इज अबाउट द parietal pericardium बाहर से और visceral pericardium अंदर से. Now your heart is divided into 4 chamber. It is divided into 4 chamber. We will divide it here. जो ऊपर के दो है these are 2 atrium और नीचे के दो है these are 2 ventricle. These are 2 ventricle. So these are atrium and these are 2 ventricles. Okay. So this is basically atrium. This is atrium, one atrium, and this is another atrium. These are 2 atrium. And these are 2 ventricle. These are 2 ventricle. So these are 2 atrium and these are 2 ventricle. Ventricle में आपका जो left ventricle है थोड़ा सा thick wall रहता, right? Because they have to pump the blood. They have to pump the blood to your whole body. Okay. So this is a right atrium. This is the left atrium. ये हो गया आपका right atrium. This one is the left atrium. Okay. Right, left atrium, right ventricle and left ventricle. Right atrium and right ventricle, ये जो right side वाले हैं दोनों, this right atrium and right ventricle, they collect the deoxygenated blood. ये superior vena cava और ये नीचे से आ रहा है inferior vena cava, right? So नीचे के पार्ट के बॉडी से और ऊपर के पार्ट के बॉडी से, right? They collect which type of blood? They collect deoxygenated blood. आपके बॉडी में का कौन सा ब्लड? They collect the deoxygenated blood. They collect which blood? That is called the deoxygenated blood. यहाँ कौन सा रहेगा आपका? Deoxygenated blood. ये आपका deoxygenated blood. तो हम लोग ऐसा निकालते हैं, ये हो गया superior vena cava और नीचे क्या आ गया आपका? Inferior vena. राइट. सो ये दोनों डीऑक्सी इसलिए हमने ब्लू कलर से निकाले. लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके. तो यहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर अंदर आएगा और फिर यहाँ से आपके बॉडी को जाएगा पूरे, राइट? सो और यहाँ से आपके किधर जाएगा? आपके लंग को जाएगा. सो ये नीचे से यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से किधर जाएगा? इट विल एंटर इनटू द लंग. लंग में उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा एंड देन फ्रॉम लंग it will enter into your right atrium. So ये हो गया आपका, that is called a circulation. तो circulation में हम लोग देखते हैं हर जगह everywhere there are some wall, everywhere there are some wall. Okay, so what are the wall? Okay, so first we will see, ये हो गया आपका नीचे का, that is called पहले हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, then I will show you the figure. पहला हो गया नीचे से आ रहा है तो inferior vena cava, ऊपर से आ रहा है तो superior vena cava, right? So inferior vena cava, okay, this is the opening which is guarded by
एक जो फ्लैप रहती है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल। कौन सी वॉल है ये? यूस्टेशियन वॉल। Then the heart is supplied by artery. That is called which artery? That is called coronary artery. It is called which artery? Coronary artery. And this artery opens somewhere here. Here there is another wall that is called Thebasian wall. यहाँ पे कौन सी wall है? Thebasian wall. Coronary sinus को कवर करने वाली। सुपीरियर वेना कैवा को कोई वॉल की जरूरत नहीं है। ओके, सो सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट एट्रियम से लेके राइट वेंट्रिकल को जो जा रहा है, हियर देर इज वन वॉल विच इज हैविंग 3 कस्प। कितने कस्प है यहाँ पर? 1, 2 और 3 कस्प है। तो इसको हम लोग कौन सी वॉल बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और ये साइड में 2 है इस वॉल के लिए, तो इसको हम लोग कौन सी वॉल बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल। इसको हम कौन सी बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड। याद रखना है आपको, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल। सो ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल। ओके, नाउ देयर आर सम अनदर वॉल विच इज प्रेजेंट हियर। यहाँ से आपका पूरे बॉडी को जो पहुंचाता है ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, वो निकलता है एवोर्टा। यहाँ से आपका क्या निकलेगा? एब्डोमिनल एवोर्टा, जो आपके पूरे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर वॉल रहती है, दैट इज कॉल्ड हाफ मून शेप वॉल रहेगी उसकी, दिस वॉल। और यहाँ से आपका जो ब्लड है वो लंग में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, राइट। यहाँ से किधर जा रहा है? आपके लंग में जा रहा है। दिस इज गोइंग इनटू रिस्पेक्टिव लंग। और यहाँ पर भी एक वॉल है जिसको बोलते हैं सेमीलिनोर वॉल। ये दोनों वॉल को हम लोग कौन सी वॉल बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड सेमीलुनर वॉल। याद रखना है आपको ये, राइट। सो फर्स्ट इज विच वन? दैट इज कॉल्ड, ये कौन सा हो गया आपका? दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, 2 और सेमिनुलर वॉल। इंफीरियर वेना क्या है कि स्टेशन, करोनरी की थिबेशियस वॉल। सो दीज आर बेसिकली वेरियस वॉल। ओके, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब हम लोग बेबी टाइप के रहते, ओके, एट दैट टाइम जब हम लोग बेबी रहेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होते रहता, तो ये जो दोनों के बीच का पार्टीशन है इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियल सेप्टम। तो ये सेप्टम व्हेनेवर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर एक ओपनिंग रहता, इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेना ओवेल। इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेना ओवेल। जब बच्चा रहेगा तब मम्मी के पेट में, जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी फिर धीरे धीरे ये सेप्टम बंद हो जाएगा, धीरे धीरे ये सेप्टम बंद हो जाएगा, राइट। और फिर बाद में जब बंद होने के बाद यहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन दिखता है यहाँ पर, इस डिप्रेशन को बोलते हैं फोसा ओवैलिस। इसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। अगर ये डिप्रेशन बच्चा डिलीवरी होने के बाद अगर बंद नहीं हुआ, वैसा ही ओपन रहा, तो हम लोग बोलते क्या, वो बच्चे के हार्ट में छेद हो गया, राइट। सो द ब्लड इज मिक्स, और फिर ऐसा बच्चा क्या, इट विल नॉट सर्वाइव, इट विल नीड द ऑपरेशन। और इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द blue baby or hole in the baby. Okay, and you already know left ventricle is much thicker than right ventricle. Left ventricle आपके right ventricle से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से पूरे बॉडी को ब्लड फ्लो करना है, यहाँ से सिर्फ आपके लंग की तरफ जाना है आपको ब्लड, राइट। एंड दिस cusp are attached to the wall with the help of thread like structure। और यहाँ पर ऐसे अटैच रहते हैं, जो ये कस्प को ओपन करते और क्लोज रहते, इधर भी रहेंगे और इधर भी रहते। ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है इनको बोलते कॉर्डी टेंडानी, इसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडानी। और ये जो मसल है जिनको होल्ड है इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल, इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल। सो नाउ वी विल सी हियर, ओके,
लाइट थोड़ा है इधर, हम लोग देखते हैं अभी। लुक, दिस इज द बैक साइड ऑफ योर हार्ट। देखो, दिस इज योर बीटिंग हार्ट, राइट। तो ये नीचे के पार्ट हो गया वेंट्रिकल, दिस इज योर विच वन, दैट इज ऑरिकल, ये हो गया आपका ऑरिकल। नाउ इफ आई मूव दिस पार्ट, अभी देखो आप, राइट। सो दिस इज बेसिकली राइट एट्रियम, देखो ब्लू कलर का आ रहा है यहाँ पर, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ये जो दो छेद दिख रहे हैं आपको, आई विल जस्ट मेक इट बिगर, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। देखो यहाँ से आ रहे हैं अंदर, दीज आर बेसिकली आपके लंग से ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है आपके लंग से, राइट। सो दिस इज, ये ऊपर से सुपेरियर वेना केवा आ गया, ये देखो नीचे से यहाँ मैंने निकाला, दिखा आपको, सुपेरियर वेना केवा ब्लू कलर का, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, दोनों ओपन हो रहे किधर, राइट एट्रियम में से। राइट एट्रियम में से कॉन्ट्रैक्शन के बाद किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और ये कौन सी वॉल है, ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल है, क्योंकि इस वॉल में कस्प रहते, इस वॉल में कस्प रहेंगे। देखो जैसे यहाँ पर कस्प है, जैसे यहाँ पर भी कस्प रहेंगे, राइट। एंड दिस कस्प, मैंने बोला ना, इज अटैच विद द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडानी। और ये जो मसल है इसको क्या बोलेंगे आप, पैपिलरी मसल। लेफ्ट साइड इज मोर थिकर देन राइट साइड, ओके, लेफ्ट साइड इज मोर थिकर देन राइट साइड। फिर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो किधर जा रहा है ब्लड, ब्लड एंटर इनटू द पल्मोनरी वेन, ओके। सो इफ यू लुक हियर, यहां से ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ से किधर जा रहा है, दैट इज एंटर इनटू द पल्मोनरी वेन, ओके। सो बेसिकली इट इज विच वन, नॉट पल्मोनरी वेन, इट इज पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये एक जाएगी लेफ्ट लंग में, एक जाएगी राइट लंग में, ओके। फिर लंग से वापस आएगा आपके हार्ट में, राइट। ये आ गया आपके कौन से, पल्मोनरी, दैट इज कॉल्ड वेन। ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, ये आएगा आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये आपका ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है अभी आ गया आपका कहाँ पर, लंग से किधर आ गया, राइट। सो दीज आर बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग। और ये जो जा रहा है, ये किधर जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर जा रहा है, लंग में जा रहा है, ये और लंग से ऑक्सीनेटेड। फिर यहाँ से आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से किधर आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कौन सा कस्प है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। फिर यहाँ से आपका जो ब्लड है किधर जा रहा है, दैट इज इन केस ऑफ, ये जो जा रहा है बेसिकली दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल एवोर्टा, ये जा रहा है आपके एब्डोमिनल एवोर्टा, देखो ये जा रहा है पूरी बॉडी में। और अगर आप देखोगे एब्डोमिनल एवोर्टा, now you can see there is a wall here, there is a wall here in abdominal aorta। और वैसे ही ये है तुम्हारा पल्मोनरी में आर्टरी में। तो ये जो दो कस्प है इसको बोलते हैं सेमिलुनार वॉल, मून जैसे रहते हैं, इसको बोलेंगे सेमिलुनार वॉल। और ये जो दोनों है ये है तुम्हारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। सो दीज आर द wall you have to remember in case of the, that is called the heart, right। so वापस एक बार देखो, this is blood coming from upper part superior vena cava, lower part inferior vena cava, collect into right atrium, from right atrium enter into the right ventricle with the help of which wall, tricuspid। फिर उसके बाद किधर जाएगा, pulmonary artery में जाएगा, राइट लंग में जाएगा और लेफ्ट लंग में जाएगा। और लंग से फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड किधर आएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से किधर आएगा तुम्हारे, दैट इज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, दैट इज इन द, दैट इज कॉल्ड द एब्डोमिनल, दैट इज इन द होल ऑफ योर बॉडी। एब्डोमिनल नहीं, पूरे बॉडी में जाएगा, इसको एवर्टिक आर्च बोलते हैं, क्योंकि ये एवर्ट है, ये ऊपर जा रहा है और बाकी फिर डिसेंडिंग है एवर्टा। इस तरह से ये पीछे से आएगा नीचे, एंड ये नीचे के पार्ट को सप्लाई करेगा आपके बॉडी के, राइट। सो इफ यू सी द बैक साइड ऑफ दिस, ओके, सो दिस इज द बैक साइड ऑफ योर हार्ट एंड दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ योर हार्ट, राइट। और ये जो दिख रहा है आपको कॉन्ट्रैक्शन इसका,
फिर इसका रिलैक्शन, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल. सो दिस इज बेसिकली द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. तो कंडक्शन के लिए कुछ तो इम्पल्स चाहिए. देर इज अ इम्पल्स, देर इज अ कंडक्टिंग सिस्टम. तो इम्पल्स कैसे आता है आपके हार्ट में? तो देर आर नोड्स हियर. एक यहाँ नोड रहेगा, राइट, और एक रहेगा यहाँ नोड. इसको बोलते हैं एसए नोड और इसको बोलते हैं एवी नोड. एट्रियम और वेंट्रिकुलर के जंक्शन को बोलेंगे एवी नोड और यहाँ पर रहेगा एसए नोड. फिर इस नोड से यहाँ से थ्रेड निकलेंगे, इसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिस, और जो पूरे तुम्हारे वेंट्रिकल को ये करेंगे, दैट इज. सो इसको सबसे पहले देखा था कीथ ने, तो इसका दूसरा नाम है कीथ नोड. इसका दूसरा नाम है बेसिकली द कीथ नोड. ओके, सो आपके सुपीरियर वेना केवा के राइट एट्रियल के वॉल में रहेगा आपका, दैट इज कॉल्ड एसए नोड. एसए नोड टू किधर जाएगा? एवी नोड इम्पल्स. एवी नोड से किधर जाएगा? बंडल ऑफ हिस में जाएगा, एंड देन योर होल ऑफ हार्ट विल बी गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स एट एसए नोड. इम्पल्स कहाँ निकलेगा? एसए नोड में इम्पल्स निकलेगा. वी विल ड्रॉ विद सम डिफरेंट कलर, दैट इज विद द ग्रीन कलर. ओके, सो हियर इट विल स्टार्ट एट एसए नोड. इम्पल्स कहाँ निकलेगा? एसए नोड पे निकलेगा और कहाँ जाएगा? एवी नोड को. यहाँ से किधर जाएगा? एवी नोड को जाएगा. ओके, फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड. ओके, एंड हाउ मेनी टाइम्स इट विल? एक मिनट में कम से कम 72 टाइम्स निकलता है इम्पल्स. इसलिए हमारा हार्ट कितने बार बीट होता? 70 टाइम्स. ओके, सो from SA node to AV node it will take how much time? 0.3 सेकेंड. इम्पल्स यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना लगता है? 0.3 सेकेंड. जैसे ही यहाँ से इम्पल्स चला गया, योर एट्रिया आर गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स है. तो इम्पल्स क्या है कि ब्लड नीचे भेजो, तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा. सो इसको बोलते हैं सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन. ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं सिस्टोल. क्यों कॉन्ट्रैक्शन होता है? रिलीज ऑफ इम्पल्स यहाँ से निकलेगा और फिर यहां तक जाने के लिए पूरा कवर करके जाएगा. उसके बाद यहां से एवी इम्पल्स निकलेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस परकिंजीज फाइबर इट विल कवर whole of your which one? That is called ventricle. It will cover the whole of ventricle. So from the auriculoventricular node it will go to the your Purkinje fiber, and through this bundle of fiber, जिसको हम लोग बोलते हैं bundle of His, इसको बोलते हैं bundle of His, और ये आखिरी के जो फाइबर है इसको बोलेंगे Purkinje's fiber. So this is basically your conducting system of heart. Okay, so what is basically the bundle of His? Bundle of His क्या है? एवी नोड से जो बंडल निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस. यहाँ से जो फाइबर निकल रहे हैं सारे बंडल ऑफ हिस है, और ये आखिर में जो आके डिवाइड होके वॉल में जा रहे हैं इसको बोलेंगे परकिंजेस फाइबर. इसको क्या बोलेंगे आप? परकिंजेस फाइबर. सो नॉर्मली दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? द कंडक्टिंग सिस्टम. सो ये जो आपका हार्ट आप यहाँ देख रहे हो, जो आपका हार्ट बीट कर रहा है, जो आपका हार्ट बीट कर रहा है, ये आपके एट्रियम हो गए और ये वेंट्रिकल हो गए, राइट. सो बीट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल. इसका कॉन्ट्रैक्शन, फिर ब्लड नीचे आएगा, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन, फिर ब्लड ऊपर चला जाएगा, फिर वापस इसमें आएगा. इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल. कंटिन्यू चलती ना वो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल को टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकेंड. यानी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा? पूरा 0.8 सेकेंड. क्या क्या स्टेप आते हैं एक साइकिल में? सबसे पहले एट्रियम का सिस्टोल, यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना. उसके बाद पहले ये कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये वेंट्रिकल का सिस्टोल, ये कॉन्ट्रैक्ट. उसके देखो साथ में हो जाता है फटक से, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल, और सबसे बाद रिलैक्स होना, दैट इज कॉल्ड जॉइंट बोलते हैं उसको. दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे, जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन, डायस्टोल यानी भरने. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ भरेगा, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन, राइट. सो इट इज कॉल्ड जॉइंट रिलैक्सेशन, इसका और इसका. सो एट्रियल सिस्टोल पहले देखते हैं हम लोग. एट्रियल सिस्टोल, द फर्स्ट वी विल सी एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल इट विल टेक 0.1 सेकेंड. कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड. ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को टाइम लगता है 0.3 सेकेंड. कितना लगता है वेंट्रिकल को?
दैट इज पंप, दैट इज द 0.3 सेकेंड. अब एट्रियल सिस्टोल को अगर 0.1 सेकेंड लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कितना लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है, राइट. अब यहाँ पर कौन सा है आपका, इट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो यहाँ पर अगर जॉइंट है, ऑरिकुलर के डायस्टोल को कितना टाइम लगेगा, टोटल 8, तो एक में से कितना गया, 0.7. वेंट्रिकुलर डायस्टोल को 8 में से 3 गए, 0.5. सो दिस इज ऑल अबाउट योर. अगर सेपरेट अगर देखोगे तो कितना लगेगा, 0.7 लगेगा एट्रियल को, और वेंट्रिकल को डायस्टोल को लगेगा 0.5. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट साइकिल विच रिक्वायर ओनली दैट इज 0.8 सेकेंड लगेगा. एट्रियल को लगेगा ये दोनों को 0.1 और वेंट्रिकल को लगेगा 0.3. और डायस्टोल एक कॉम्बिन वाला है, तो अगर एट्रियल सिस्टोल को 1 लग रहा है तो एट्रियल डायस्टोल को 7 लगेगा, क्योंकि 0.8 में का 7. वेंट्रिकल को अगर 3 लग रहा है तो डायलेट को बचे कितने, 0.5 सेकेंड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, कार्डियक साइकिल. समटाइम दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कितना है, कितना ब्लड बाहर निकलता है कार्डियक आउटपुट में से, दैट इज इट इज आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम इंपल्स निकलता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है आपका, 70 ml, याद रखना है आपको, 70 ml मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट कितना है, 70 और 72. so it is approximately like I can write 5000 ml or 5 liter. okay, so stroke volume कितना है, that is called 5 liter. so this is the stroke volume. कभी कभी पूछते हैं, now we will see, ये जब आपको दिख रही है वॉल, ये जब चालू बंद होते हैं, then they make some sound, then they make the sound, and these sounds are called first heart sound and second heart sound. So first heart sound, okay, it is both the sound are during the second heart sound, systole and ventricular diastole. okay, so first heart sound basically it is by right and left auriculoventricular wall. ये जो वॉल का क्लोजर है, ये वाली और ये ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल, इससे जो बनता है इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड. उसके बंद होने से जो आवाज आएगी उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड. सेकेंड हार्ट साउंड बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ दिस टू वॉल, ये एक वॉल और ये जो दिख रही है, ये दोनों वॉल कौन से हैं, सेमी लूनर वॉल. सो कैसे याद रखोगे, सेमी लूनर वॉल, सेकेंड हार्ट साउंड. ओके, देन फर्स्ट हार्ट साउंड बचा कौन सा तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेटर, दैट इज ए, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल. ओके, सेकेंड हार्ट साउंड इट्स सेमिलुनर वॉल. ओके, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड एंड फर्स्ट साउंड हाउंड, दैट इज कॉल्ड लब. फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड लब. फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड लब and second heart sound is called dub. This first heart sound is basically loud and second heart sound is dull. okay, so and this is for loud one, तो for loud है तो ज़्यादा intensity रहेगा और इसका कम रहेगा. so this is all about first heart sound. lub is loud, dub is dull. इतना याद रखना है आपको dull और short duration के लिए. okay, so this is all about your which one, that is called heart sound. okay, so this is your basically the sound of the heart. now ये थोड़ा हम लोग कुछ देर के लिए इसको साइड में कर देते हैं. अब देखते हैं हम लोग what are the types of circulation, what are the basically types of circulation. यानी आपका जो सर्कुलेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, राइट, किसका और कौन कंट्रोल कर रहे हैं आपका सर्कुलेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सर्कुलेशन ऑफ योर हार्ट, अगर आपके ब्रेन में अगर देखा जाए, इन ब्रेन द सर्कुलेशन
is controlled by medulla oblongata. Medulla oblongata, यहाँ पर एक हार्ट का रेट बढ़ाने के लिए एक सेंटर है और हार्ट का रेट कम करने के लिए, यानी एक्सीलरेटरी सेंटर है और एक इनहिबिटरी सेंटर है. एक्सीलरेटरी सेंटर तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा एक न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं एड्रीनालिन, रश हार्मोन जिसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एसिटिल कोलिन, इसको बोलते हैं एसिटिल कोलिन. तो ये ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा सिक्रेट करेगा, मैसेज नीचे जाएगा और आपका हार्ट क्या करेगा, बेसिकली ये आपका हार्ट का रेट कंट्रोल करेगा. दूसरा कंट्रोल है हार्मोन से. हार्मोन से भी आपका सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता. तो आपकी एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला. हियर दे सिक्रीट एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. सो ये एड्रीनालिन और नॉरएड्रेनालिन दे आल्सो रेगुलेट योर which one that is called circulation. Now there is one more thing, just like circulation in your heart, कौन कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, बीपी. ब्लड प्रेशर क्या है, बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू व्हाट दैट इज कॉल्ड आर्टरी एंड वेन. ओके, तो अब है आपका ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर हम लोग क्या है, ब्लड प्रेशर इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑफ आर्टरी. ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑफ आर्टरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. और किससे हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करते हैं इसको, स्पिग्नो, दैट इज कॉल्ड स्पिग्नोमैनोमीटर. स्पिग्नोमैनोमीटर. ओके, दैट इज अ ब्लड प्रेशर. एंड हु डिस्कवर्ड दिस, दैट इज डिस्कवर्ड बाय कोर्त्सकॉफ. दैट इज डिस्कवर्ड बाय कोर्त्सकॉफ. ये जो इंस्ट्रूमेंट है किसने डिस्कवर किया, कोर्त्सकॉफ. ओके, नॉर्मल बीपी कितना रहता है आपका, 120 मिलीमीटर बाय 80. मैनोमीटर है तो मिलीमीटर ऑफ एचजी में देखते हैं हम लोग. ये है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, राइट. ये ऊपर वाला 120 सिस्टोलिक है. कॉन्ट्रैक्शन वाला कभी भी ज़्यादा प्रेशर रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक आपका कभी भी कम रहेगा, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक. सो ज़रूरी नहीं है 120 बाय 180 ही सब में चाहिए. नया नया बच्चा अगर होगा, न्यूबॉर्न में उसकी बॉडी सरफेस एरिया सर्कुलेशन थोड़ा सा कम रहेगा, तो इसमें कितना 90/60 नॉर्मल रहेगा इसका ब्लड प्रेशर. ओल्ड एज अगर होंगे तो 149/89 उसका ब्लड प्रेशर, या 150/90 उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है, राइट, क्योंकि थोड़ी सी इलास्टिसिटी कम हो जाती. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर. ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है आपकी हार्ट की, जो इम्पल्स आपका जनरेट हो रहा है, राइट, द इम्पल्स इज जनरेटेड लाइक इफ दिस इज योर हार्ट. नाउ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है आपके हार्ट की, ये दोनों आपके एट्रियम, ये आपके वेंट्रिकल. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो आपको आपके बॉडी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड्स रखने पड़ेंगे. एंड नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका अगर आप एक पेपर पे निकालोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो हार्ट का है करके कार्डियोग्राफ और ग्राम. ओके, सो ECG और इन सम इट इज इलेक्ट्रोकेफेलोग्राम. ओके, एंड फर्स्ट टाइम ECG किसने बोला था ये करने के लिए, इथोवैन. ओके, इथोवैन ने ऐसा रहता करके बोला है. और रिकॉर्ड किसने किया, रिकॉर्ड वोल्टर ने किया. किसने किया था सबसे, दैट इज कॉल्ड द वोल्टर. इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड की लीड आपके दोनों आर्म्स को, दोनों लेग्स को लगाई जाती है, राइट. सो ये आपके बॉडी में 2 आर्म्स 2 लेग्स को लीड लगाई जाती, राइट. और ये सारी लीड यहाँ से आपका ECG निकलता. और एक जो है चेस्ट लीड रहती है यहाँ पर, जो आपके हार्ट को इस तरह से लगाई जाती है, यहाँ से यहाँ. सो आपके हार्ट की यहाँ से लेके यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, पूरे हार्ट की आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं. तो कहाँ कहाँ कौन सी लीड है, आर्म को लगाने वाली, लेग्स को लीड लगाते और चेस्ट को लगाते. ये होगी आपकी लीड्स जो लगाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए. एंड द ECG यू विल गेट इट इज लाइक P. इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, PQRST
ये आपके लाइन के ऊपर के पॉजिटिव है, पी आर एस टी पॉजिटिव है, क्यू और एस कौन से आपके नेगेटिव वेव है. सो व्हाट दिस पी किसके लिए, ये पी वेव जो है, दिस पी वेव रिप्रेजेंट व्हाट, डीपोलर है, सिस्टोल जिसको हम लोग बोलते हैं, सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है इसमें, राइट. सो सिस्टोल करना, ओके, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन करना, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ. और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए इम्पल्स करना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे नोड में से. इम्पल्स के लिए पोलराइजेशन की डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन. सो दिस इज अ डीपोलराइजेशन वेव, ऊपर जा रही है, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन वेव. फिर P के बाद आएगा आपका, दैट इज कॉल्ड Q, दैट इज कॉल्ड Q, दैट इज PQ बोलते हैं हम लोग उसको, PQ. ये PQ क्या है बेसिकली, ड्यूरिंग दिस PQ आपके एट्रिया पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. शुरुआत हो गया और फिर खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्शन तक आ गए, राइट. शुरुआत हो गया डिपोलराइजेशन और पूरा कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया. and this time period is like how much, 0.1 second, okay, that is 0.1 second. उसके बाद QRS, QRS जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स है वापस चालू हो गया, किसी का तो भी कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड, किसका सिस्टोल चालू हो गया, अभी एट्रियल का हो गया, अब किसका होगा, ये वेंट्रिकुलर का हो गया. दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. और उसके बाद वापस ST क्या है उसका, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर contraction. So this is your ventricular contraction, RST. So ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये डीपोलराइजिंग वेव है आपकी, ये दोनों एट्रियल का स्टार्ट हो गया और ये वेंट्रिकुलर का, और ये PQ खत्म हो गया और QRS खत्म हो गया, राइट. दिस इज कॉल अबाउट योर PQ, RS और ECG. इसके बाद हम लोग देखते हैं पल्स. एवरीबडी नो व्हाट एग्जैक्टली द पल्स इज. व्हाट इज पल्स? जितनी बार आपका हार्ट यहाँ से बीट होगा, सर्कुलेशन इधर जाएगा, राइट, आपके बॉडी में. एंड आपकी जो आर्टरी है, राइट, इफ यू सी योर आर्टरी ईयर मेडियन साइड से, यहाँ आप अगर आप फील करोगे तीनों फिंगर से, सो यू कैन फील देयर इज अ बाउंडिंग प्रेशर विच इज बिकॉज ऑफ द बीटिंग ऑफ योर हार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्स. अगर आपका हार्ट 72 टाइम्स अगर बीट होता है तो आपकी पल्स भी कितनी मिलनी चाहिए आपको, 72 टाइम्स. सो क्यों मिलती है, सिस्टोल की डायस्टोल से, सिस्टोल से याद रखना है, और कौन सा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो पल्स किससे वजह से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और कितनी रहती, 72 पर मिनट. कहीं पर भी जहां जहां आपको आर्टरी पल्पेट कर सकते हैं आप, वहां वहां आपको यहाँ पर भी मिल सकती, यहाँ पर भी मिल सकती, कहीं पर भी जहां आप आर्टरी. नाउ देयर इज सम लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द पोर्टल सिस्टम. व्हाट इज दिस पोर्टल सिस्टम? पोर्टल सिस्टम क्या है, हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं. व्हाट इज दिस पोर्टल सिस्टम? पोर्टल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्टल वेन. पोर्टल सिस्टम में क्या, पोर्ट यानी कहीं तो भी कुछ देर के लिए रुकना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट बोलते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम आपके बॉडी में है, एक है हिपैटिक और दूसरी है हाइपोफिजियल, दैट इज कॉल्ड हाइपोफिजियल सिस्टम. हाइपोफिजियल किधर होगा, पिट्यूटरी में, और हिपैटिक किधर होगा, लिवर में, राइट. सो इन हिपैटिक क्या होता है बेसिकली, ये जो वेन रहती जो भी है पोर्टल सिस्टम में, दिस वेन कलेक्ट द ब्लड, आपके GI ट्रैक्ट से ब्लड को कलेक्ट करेंगे, राइट. सो दिस वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम GIT, आपके GIT में से ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा. देन इस तरह से वो डिवाइड होगा, राइट. कलेक्ट करना है ना, ये पहला हो गया, यहाँ से इधर उधर से कलेक्ट किया, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज द सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी, दिस इज द फर्स्ट सेट, यहाँ से कलेक्ट किया और लीवर में जाके हो सकता है सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज हो गया, राइट. सो बेसिकली फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज आपका GIT में हुआ, सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज आपका लिवर में हो गया, राइट. सो बेसिकली क्या हो गया, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं पोर्टल वेन,
ये कनेक्ट कर रही है ना, सो इट कनेक्ट टू ऑर्गन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोर्टल वेन और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वैसे ही आपका समझ लो ब्रेन में जो है राइट हाइपोफाइजियल, तो क्या करता है आपके जो ब्रेन में है, यहाँ पर है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड राइट, और यहाँ पर है आपका हाइपोथैलेमस राइट। सो यहाँ पर से सेट ऑफ कैपिलरीज आएगा और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में एक दूसरा सेट ऑफ कैपिलरीज तैयार होगा, यहाँ एक राइट। सो कलेक्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड सेकंड सेट किधर रहेगा, एंटीरियर लोब। सो ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, तो ये बीच वाला जो है दैट इज कॉल्ड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वेन है। ओके, एक रीनल पोर्टल सिस्टम भी रहता लेकिन हमारे इसमें वो काम नहीं करता। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। बर्ड में भी रहता बट इन केस ऑफ बर्ड इट इज वेस्टिजियल। सो हमारे ही इसमें दिस हेपेटिक एंड हाइपोफिजियल रहेगा, फिशेस में एक रहेगा दैट इज द रीनल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर देर आर सर्टन डिजीजेस यू हैव टू रिमेंबर राइट। अगर ब्लड सर्कुलेशन, तो सबसे पहला डिजीज सबको याद आना चाहिए कि क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। व्हाट इज दैट कॉल्ड, हाइपरटेंशन। बीपी जिसको बोलते बढ़ गया, हाइपर टेंशन। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ता है, अप टिल वी डोंट नो द इटियोलॉजी राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कम अंडर द क्रॉनिक डिजीजेस राइट। और क्या रहेगा, धीरे धीरे नैरोइंग। ये अगर आपकी आर्टरी नॉर्मल है तो बाद में इतनी छोटी बन जाएगी, तो ब्लड यहाँ अगर 10 ml मिलता होगा तो बाद में ऑर्गन को 5 ml मिलेगा। तो धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ब्रेन में हो जाएगा प्रॉब्लम, किडनीज में हो जाएगा राइट, बहुत सारे डिस्टेंट ऑर्गन में, आईज में हो जाएगा। दिस इज द एक दूसरा डिजीज है कोरोनरी artery diseases right. So you already know your heart is supplied by the first artery that is called coronary. आपके हार्ट को बोलते हैं, you already know heart is called selfish and foolish organ. क्यों selfish, क्यों, your heart supply the blood to all part, सारे पूरे पार्ट को ब्लड सप्लाई करता, लेकिन सबसे पहली ब्रांच वो खुद को लेता, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फिश। फुलिश क्यों, क्योंकि सबको वो ब्लड प्रोवाइड करता और खुद उसका जब डेथ होता तो किसकी वजह से होता, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। लोगों को ब्लड पहुंचा रहा है और खुद का डेथ क्यों हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड से। इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फिश एंड फुलिश ऑर्गन। सो दैट इज नॉट रियली पार्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द। सो कोरोनरी आर्टरी में क्या होती है, जो आपके हार्ट को सप्लाई कर रही है, वो जो कोरोनरी आर्टरी है उसका जो बोर है, ये जो बोर दिख रहा है जहाँ से ब्लड निकलता है, वो धीरे धीरे और छोटा छोटा होते जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी यहाँ पर आपका डाइट की वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, फैट डिपोजिशन हो रहा है राइट। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, या एज की वजह से स्क्लेरोसिस हो रहा है, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। तो उसके वजह से आपके ब्लड, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो आपके हार्ट सेल को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो आपके सेल धीरे धीरे डेथ होना चालू होगी। उसके वजह से क्या होगा, पेन होगा। ओके, दैट पेन प्रीवियसली इज कॉल्ड एंजाइना, previously is called angina. Angina is because of decrease blood supply to heart. तो रिवर्सिबल है, आप बढ़ा दोगे तो और ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एंजाइना को अगर आप ट्रीट नहीं करोगे, देन योर हार्ट कम इनटू मायोकार्डियल इश्केमिया। इश्केमिया मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है आपके सेल को, तो फिर धीरे धीरे पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी रिवर्सिबल है, ये तो पता ही नहीं चलता, जल्दी ठीक हो, ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर ये भी ठीक नहीं हुआ, देन यू विल एंटर इनटू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। व्हाट इज मीन बाय इन्फॉक्शन, डेड हो जाएगा आपका उतना पार्ट आपका हार्ट का, एंड दिस इज नॉट रिवर्सिबल, दिस इज नॉट रिवर्सिबल। तो पहले ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, फिर धीरे 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 यहाँ पर वॉल में क्या जमा हो रहा है,
एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पर फैट वगैरह जमा है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, राइट, तो इसको एंजाइना बोलेंगे। फिर खाना ठीक खाओगे फिर एंजाइना ठीक हो जाएगा। फिर धीरे 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 अगर कुछ भी नहीं करोगे तो और यहाँ पर डिपोजिशन बढ़ते जाएगा, राइट, फिर ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, यू कैन लैंड अप इनटू इश्केमिया, राइट, एंड आफ्टर दैट फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा, then it is called infarction, then it is called infarction. So this is all about your which one, that is called the myocardial infarction. This is the last part of your, that is called the heart diseases. So this is all about your which one, what are the various diseases of your heart or circulatory system. So in this chapter you have to remember about the circulation. In circulation you have to remember about what, that is called what, blood is divided into what, plasma and cell. Plasma contain inorganic and organic, cell RBC, WBC and platelet. WBC सबसे बड़े है, डिफेंसिव है, प्लेटलेट कैसे है आपके, दे आर सबसे छोटे है, दैट इज फॉर क्लॉटिंग थिंग, और आपके जो है RBC दैट इज फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हीम मॉलिक्यूल में सेंटर में आयरन है, पोरफायरन रिंग है, और उसके बाद 4 हीम मॉलिक्यूल और 2 अल्फा 2 बीटा, जिनसे हम लोग क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं, राइट। सो दिस इज फॉर सर्कुलेशन। फिर हार्ट में चेम्बर, वॉल दो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, सेमिलुनर वॉल का, सेमिलुनर वॉल सेकंड साउंड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड फर्स्ट साउंड, राइट। तो ये याद रखना है आपको। पी वेव किसके लिए, एट्रियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, पी क्यू किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, क्यू आर एस टी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। टोटल कितना लगता है 0.8, इसको कितना लगता है टाइम 0.1, SA टू AV, और AV को कितना लगता है बाकी का टाइम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एंट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ओके।